Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. And the USP of this initiative is that we try to cover the most important news and additionally providing some of the important content that is relevant for that news so that they can help you in prelims and mains examination. So let's get started. So today is 7th of December and these are the list of the topic for the day. The first topic is that NGT seeks action plan for the elephant corridor. This is one of the important news in terms of prelims examination and mains examination. Now the second is loopholes in the new labor codes law. The third topic is SII, that is Serum Institute of India. They have seeks emergency note for the COVID shield. The second last topic is Indian Navy to join IAF in the jet shopping. And the last topic is Petroleum Board new unified tariff structures. So these are some of the important news and article reports reported in both of the newspaper. Apart from this, I'll be also discussing some MCQs question at the end of this video and the explanation of yesterday question. तो जो सैटरडे के सवाल थे उसके करेक्ट ऑप्शन और एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगा. So stay tuned till end of this session so that you could practice some important questions. Now starting the session with the first news, that is NGT seeks action plan on the elephant corridor. This can again be very relevant on your general studies paper 3. आपके जनरल स्टडीज के पेपर 3 मेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है और एलिफेंट कॉरिडोर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं. सो द न्यूज़ हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द हिंदू एंड लेट्स सी व्हाट आर द डिटेल्स कमिंग फ्रॉम इट. सो एक रीसेंट डिसीजन ली गई है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से और एनजीटी ने डायरेक्ट किया है उड़ीसा गवर्नमेंट को टू प्रिपेयर अ एक्शन प्लान ऑन द एलिफेंट कॉरिडोर, राइट. सो दिस इज अ डायरेक्टिव्स और डिसीजन दैट हैज़ बीन कमिंग फ्रॉम द एनजीटी. और ट्राइब्यूनल ने ये भी कहा है कि आपको 3 महीने की मोहलत दी जाती है सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई 14 elephant corridor in providing the stress-free migration of the jumbos on one habitués to the another in the state, right. तो एनजीटी ने पहले भी ऑर्डर दिया था इसके रिगार्डिंग, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या उसकी बातें थी. नाउ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड 14 कॉरिडोर स्ट्रेच जिसमें 870 किलोमीटर के आसपास की जो टोटल स्ट्रेच है वो डिफाइन की गई थी, बट अभी के टाइम में दैट इज ओनली 420 किलोमीटर्स, राइट. So, despite the passing of the several years, no tangible progress has been made by the government proposal. जो गवर्नमेंट ने प्रपोजल दी थी उड़ीसा गवर्नमेंट ने उस पर अभी तक कोई टैंजिबल कंक्रीट एक्शन नहीं लिया गया है, जिस वजह से एनजीटी ने एक डायरेक्टिव्स दिए हैं उड़ीसा गवर्नमेंट को कि आपको विद इन 3 months, दे हैव बीन प्रोवाइडेड 3 months कि इसके अंदर अंदर सारी चीज़ों को कंप्लीट करना होगा. Now, Wildlife Society of Odisha है, this is the organization that have filed a plea. तो इन्होंने वाइल्ड लाइफ सोसाइटी जो है उड़ीसा के उसमें एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एनजीटी के पास अपनी दे हैव अपील्ड एन एप्लीकेशन कि जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉरिडोर्स है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है. और जो डब्ल्यूएसओ है उसके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा था एनजीटी को, दे हैव रिटन लेटर. And WSO wanted कि NGT should intervene in the legal action that encourages the violation of Forest Conservation Act 1980. This point is very important. जो Forest Conservation Act है 1980 और जो Indian Forest Act 1927 है उसके तहत under the ambit of these two law, the forest, actually the elephant corridor should be coming into the action at the earliest, right? तो ये डिमांड है WSO की जो कि है Wildlife Society of Odisha. Now coming to the types of cases and NGT that can handle, because NGT की पावर बहुत ही वाइड है एंड यूपीएससी ने इस पे प्रीलिम्स में कई बार सवाल भी पूछे हुए हैं. सो दिस इज़ वेरी एसेंशियल यू नो कि कौन से केसेस एनजीटी हैंडल करती है. तो जो 2/3 ऑफ केसेस होते हैं एनजीटी के पास में दैट रिलेट टू EIA जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है उसको लेकर के, एंड द अदर पार्ट इज ऑफ द पॉल्यूशंस. So in total, if you talk about the total cases, the largest number of the cases in the NGT is with regards to the environment impact assessment. The second largest cases are handled by the pollution. उसके बाद limitations के लेकर के coastal zone regulation जिसको CRZ भी कहते हैं. Fourth is national park, sanctuary and wetlands. 4% is public interest litigation and the locus standi. 3% पब्लिक हियरिंग में, 4% और 3% अगेन इन द फॉरेस्ट क्लियरेंस और 4% जो पूरी केसेस हैंडल हो जाती है उसमें मिसलेनियस केसेस भी इंक्लूड होते हैं. सो दिस इज एन ऑफिशियल डेटा दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द एनजीटी.
Now talking about the directives that has been given from the NGT, तो NGT ने ये कहा कि जो भी अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स हैं खास करके देन कनाल डिस्ट्रिक्ट्स में, उसको आप जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें ताकि जो एक्यूट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है उससे जो जम्बोज एलिफेंट है उनको बचाया जा सके, एंड टू मेक फॉरेस्ट फ्री फ्रॉम द इंकोचमेंट, राइट. सो इंकोचमेंट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज इन द फॉरेस्ट. उसके बाद इट हैज़ डायरेक्टेड द उड़ीसा गवर्नमेंट टू इंश्योर स्ट्रेस फ्री माइग्रेशन ऑफ द जम्बोज इन द स्टेट, राइट. तो जो इंटर स्टेट माइग्रेशंस होगी उसको एक उड़ीसा गवर्नमेंट इस तरह से इंश्योर करे कि फ्री और स्ट्रेस फ्री फेयर माइग्रेशन हो सके जम्बोज की. एनजीटी ने ये भी कहा है कि जो प्रोहिबिशन होगी, like directing to such activities which are not permissible to be carried out in such so highly eco-sensitive zones, right, that should not be taken into the अंडरटेकन. तो एनजीटी ने ये क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ जो परमिसेबल नहीं है इको सेंसिटिव जोन में, राइट. सो वी कॉल इट इन शॉर्ट लाइक ESZ. जो इको सेंसिटिव जोन में जो चीज़ें परमिसेबल नहीं है दैट शुड नॉट बी टेकन, दैट शुड नॉट हैपन, और कोई भी इस तरह के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं होंगे. मोर ओवर एनजीटी ने ये भी डायरेक्ट किया कि जो अथॉरिटीज़ होंगे उनको जितनी भी डिमार्केशन की जो प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द पूरा करना होगा. दे हैव टू एक्सपीडिएट इट. और जो कॉरिडोर्स होंगे, जो प्रपोजल्स होंगे, जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी 2017 से चल रही है एंड इट कैन नॉट बी डिलेड मोर. So these are the directive from the NGT. They have taken some concrete and stringent action so that the actual corridor that has to be coming, no, जितने भी important corridors हैं, 14 free corridors हैं, वो जल्द से जल्द उड़ीसा में place किए जा सके. Now this is an infographic which will help you understand कि किस तरह से southern India में the news were all about the उड़ीसा government, but मैं आपको यहाँ पे थोड़ी से southern के बारे में बता दूँ. यहाँ पे ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, ईस्टर्न घाट, नीलम्बूर, साइलेंट एंड कोयम्बटूर के बारे में, पेरियार, अस्तगलाई नेशनल जो लैंडस्केप है, और अन्नामलाई, परिबुकुलम एरिया. So this you can see how 28 landscape and corridor in the southern India, and these are the important ecological elephant corridor that is very important. और recent में देखी गई है there had been threat to the elephant corridor, right. तो कुछ linear projects थे like road, highway, railway, irrigation and minor hydro electricity project जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है. तो जो टोटल स्टेट आते हैं इसमें that is 10 coming from Karnataka, 5 from the Kerala and 13 from the Tamil Nadu, right. So it is equally important कि आप उड़ीसा के साथ साथ और भी जो important corridors disputed रहे उनको आप knowledge में अपने रखें. Now coming to the loopholes in the new labor code law, the recently passed labor code law जो सरकार कहती आ रही है this is very good for the people or the people who are associated with the organized sector, but यहाँ पे कुछ इसके अपने loopholes हैं. So what are the loopholes that has been depicted in this editorial? So this is equally important for your general studies paper 2, और जो law है new labor code ये आपके prelims में भी important होगी. Now the Union Labour Ministry जिन्होंने क्लेम किया कि जो 4 नए लॉ हैं that would generate the employment and secure the basis of the right for the worker. So this is the main aim that government is portraying कि इस लॉ से जितनी भी employment generation है वो बढ़ेगी और जो basic rights है वर्कर की वो इंश्योर होगी. बट ये जो claimed है, जो क्लेम किया गया है, it also claim कि जो लेबर लॉ है that seeks to universalize the right to minimum wages. मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो पहले estimated wages दी गई थी बहुत सारे कमिटीज़ के द्वारा वो उससे भी अभी भी कम है, मतलब हाफ देन व्हाट वाज एस्टिमेटेड, राइट. तो अभी सरकार जो कह रही है कि वेज सिक्योरिटी होगी बट एक्चुअल में ये हाफ है जो एक्चुअल में होनी चाहिए, राइट. बट अभी देखा जो गया है जो लेबर कोड्स हैं दैट आर नॉट यूनिवर्सली वेलकम. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन जो रूलिंग पार्टी है अभी बीजेपी, उसके अपने एफिलेटेड भारतीय मजदूर संघ है, उन्होंने भी इस कोड को अपोज किया है. सो वन ऑफ द फोरमोस्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस कि क्यों, क्या ऐसी कारण है जो रूल्ड स्टेट के जो मजदूर संघ है या जो यूनियन है वो भी इस बिल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं. जाहिर सी बात है कुछ ऐसी लूप होल्स होगी, दैट इज द रीजन दैट पीपल आर प्रोटेस्टिंग. सो वी विल बी सेइंग व्हाट आर द डिटेल्स दैट इज देयर दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे एक्चुअल लूप होल्स हैं. तो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो कुछ क्लेम्स हैं, उसको उसके तरफ सबसे पहले देखने की ज़रूरत है. तो कोड के हिसाब से कोड हैज़ मैंडेटेड द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो ESI है, और जो प्रोविडेंट फंड होंगे ओनली वर्कर बिलोंगिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 10 वर्कर, ऐसे जगह
जहाँ पे 10 वर्कर कम से कम काम कर रहे होंगे वो एंटाइटल होंगे इस बेनिफिट के। तो अगर आप किसी भी जगह पे 10 एम्प्लॉयज़ के अगर एस्टेब्लिशमेंट को कंसिडर करते हो, अगर किसी एक एस्टेब्लिशमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं तो आप कम से कम 80% ऑफ जो पीपल को इग्नोर कर रहे हो। दिस इज व्हाट द एडिटर हैज़ टू से हियर। और इस वर्कर में जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोड है दैट इज एम्बिट आउट ऑफ दिस बेनिफिट। तो जो आप 10% की जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर पूरा नहीं किया जाए तो 80% ऐसे लोग होंगे जो इस प्रीव्यू में नहीं आएंगे एंड दे वुड बी नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट्स, राइट। एंड दे मे ऑल्सो बी अलाउड टू एक्सेस द अंडर यूटिलाइज एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस हॉस्पिटल। तो ये जो 80% पॉपुलेशन को कवर नहीं की जा रही है ये सबसे बड़ी डायलेमा है इस बिल की। Now coming to the what does ESI coverage means for the remaining 20% of the worker। तो जब सरकार ने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग के वर्कर की कैपेसिटी होगी उनको ही टाइटल मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी, तो जो बाकी जिनको नहीं मिल रही है बेनिफिट उनके परसेंटेज 80% है और जिनको बेनिफिट मिलेगी उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 20% है, राइट। सो इन 2016 की अगर बात करें तो ESI ने 2.1 करोड़ वर्कर्स को कवर किया था। दिस हैज़ इंक्रीज टू 3.6 करोड़ बाय मार्च इन 2019। और जो ESI है दैट एम्प्लॉयड अराउंड 6 डॉक्टर पर 1 लाख बेनिफिशरीज। सिर्फ 6 डॉक्टर को डिप्लॉयड करती है ESI पर 1 लाख बेनिफिशरीज पे। तो आप समझ सकते हो दिस इज़ वेरी पुअर कंडीशंस। जब अगर हम WHO की बात करें तो WHO ने मैंडेट किया है कि कम से कम हर 1 लाख पे एटलीस्ट देयर शुड बी 100 डॉक्टर्स, राइट। सो दिस इज नॉट मैचिंग द पैरामीटर्स ऑफ द WHO। और जो प्रपोर्शंस होगी डॉक्टर की दैट इज ऑल्सो बेनिफिशरीज वुड हैव बीन फॉलन अंडर द एक्सपैंडेड मेंबरशिप। और ESI वुड नीड टू हैव एन अर्जेंट नीड ऑफ डॉक्टर, जहाँ पे जो पैरामेडिकल की स्ट्रेंथ है या जो क्वालिटी है दैट हैज़ टू इम्प्रूव विच वुड नीड मोर रिसोर्सेज। तो मैन पावर की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है सो दैट दिस पीपल कुड बी कवर्ड। 3.6 करोड़ है अभी प्रेजेंट में, इट कुड ग्रेजुअली इंक्रीज टू 4 और 4.2 करोड़। Now coming to the other interest, like गवर्नमेंट का कहना है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है दैट वुड इम्प्रूव। तो यहाँ पे अगर आप बात करें कि एम्प्लॉयज़ की जो कंट्रीब्यूशन है EIS में उसको भी रिड्यूस कर दी गई है। अर्लियर इट यूज टू बी 6.5%, नाउ इट इज़ ओनली 4% फ्रॉम जुलाई 2019। तो ये जो डिसीजन ली गई है सरकार की तरफ से टू रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन, दिस इज कमिंग व्हेन द इंक्रीज एक्सपेंडिचर और जो मेडिकल क्योर में सबसे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, ये एक तरह से काउंटर इंट्यूटिव हो जाता है इस कंडीशन को देखते हुए। Now within the new code seeks to cover 20% of the worker। अब ये जो नई कोड है ये सिर्फ और सिर्फ 20% जो वर्कर हैं उनकी डिमांड को पूरी कर रही है। उसके बावजूद द फर्दर इंक्रीज ऑफ अराउंड 10 करोड़ वर्कर इज गोइंग टू बी देयर। तो जो 3 टाइम इंक्रीज हो रही है मेंबरशिप में उसको गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगी, और जो डॉक्टर्स के खास करके डॉक्टर्स और जो पेशेंट्स के रेशियो हैं या ओवरऑल जो EIS की जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयड फंड में लेकर के दैट हैज़ टू बी देयर, बिकॉज ये मिसमैच आगे बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रह सकती है। Now coming to the promise of minimum wages, because government has told that they would be ensuring कि minimum wage वो पूरे मिल रहे हैं। तो जो लेबर मिनिस्टर है एट प्रेजेंट उन्होंने कहा कि जो 30% ऑफ द वर्कर है वुड बी कवर्ड अंडर द वेरियस मिनिमम वेजेस शेड्यूल। और अगर इसकी बात करें जो प्रेजेंट में बजट में जो चीज़ें एस्टिमेशन की गई थी वहाँ पे गवर्नमेंट ने पहले ही कहा था कि दिस वुड बी 202 रुपीज़, राइट। बट मिनिस्ट्री हैज़ टोल्ड कि जो मिनिमम फ्लोर वेजेस होंगी वो 178 होगी। दिस इज फ्रॉम 2019, बट अभी प्रेजेंट में जो डेटा बजट में पेश की गई उसमें 202 की बात की गई है। एंड दिस इज मोर देन हाफ व्हाट वाज एस्टिमेटेड। 375 रुपीज़ का रिकमेंडेशन थी एक्सपर्ट कमेटी जो थी लेबर पे, उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए थे कि पर डे की जो मिनिमम वेज होनी चाहिए लेबरर की वो 375 होनी चाहिए, बट जो फ्लोर सेट की गई है वो 178 पे है, डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद 202 के लिए अनाउंस किया हुआ है। सो दीज आर द प्रोमिसेस, और अपने आप में ये प्रोमिसेस काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। Now coming to the other news that Serum Institute of India has seek nod for the Covishield। So this would be again important for your general studies paper 3 environment के जो sections हैं या फिर science and technology for the human welfare के जो section है वहाँ पे चीज़ें important हो सकती हैं। So the Serum Institute of India has become the first that they would be using the indigenous जो ड्रग होगी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को उन्होंने एप्लीकेशंस दिए हैं
कि इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिए जाएं उनको, जिस तरह से ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन को जो चीज़ें चल रही हैं कंट्री में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो उनका कहना है कि जो मेडिकल नीड्स है दैट इज़ वेरी नेसेसरी, कि अभी जो पेंडेमिक का टाइम है पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस तरह के डिसीजन को लिया जाना चाहिए। सो व्हाट एक्चुअली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज डिमांडिंग, अप्रूवल वो डिमांड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रायल रिजल्ट। जो फेज 3 के जो ट्रायल्स आए थे ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 वैक्सीन के, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट में है, दिस इज नोन एज कोविशील्ड। तो इसमें आईसीएमआर के साथ अप्रूवल के लिए बहुत सारे पार्ट्स में ऑलरेडी ट्रायल चल रहे थे, दिस इज इन द कोलैबोरेशन ऑफ दैट। तो जो फेज 2 और फेज 3 के जो रिजल्ट्स आए हैं दैट परस्यू अर्ली अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन फॉर द इंडिया, और रिजल्ट्स काफ़ी सेटिस्फाइंग थे, ऑलमोस्ट क्लोज टू 90% के आसपास की इसकी एफिकेसी रेट है। Now, according to the ICMR, जो Serum Institute of India, they have already manufactured 40 million doses. 40 million of doses इन्होंने एडवांस में बना के रखा हुआ है कि अगर कोई भी एटलीस्ट ऐसे रिस्क स्टॉक पाइलिंग की जरूरत पड़े DCGI के अप्रूवल के बाद, तो दे कैन यूज दिस नंबर ऑफ वैक्सीन। जो क्लिनिकल स्टडीज हैं ऑफ द वैक्सीन वुड अगेन बी कैरीड आउट बाय द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका एंड द यूके एंड द ब्राज़ील। बहुत जगह पे अगर देखे गए हैं, कुछ एक आध जगह पे ब्राज़ील में या यूके में जो रिजल्ट्स थी उसमें एक आध दो पेशेंट्स को एडवर्स इफेक्ट भी हुई थी। बट इस तरह के जब लंबे ट्रायल्स होते हैं वेयर यू हैव 1000 नंबर ऑफ वॉलंटियर, तो वहाँ पे एक दो लोगों के साथ अगर कुछ होती है तो उसको फिर से दे आर टेकन इनटू द सुपरविजन, एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल द सेम फेज स्टार्टेड फ्रॉम द दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ना बात करें हाई एफिकेसी रेट की, तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, दे हैव कोटेड दैट फ्रॉम द 4 क्लिनिकल स्टडीज इन यूके, 1 इन द ब्राज़ील एंड 1 इन द इंडिया हैज शोड कोविशील्ड हाई एफिकेसी, जहाँ पे अगेन द सिम्टोमेटिक कंडीशन और सीवियर इन्फेक्शन जो हो रहे थे लोगों को, उससे बहुत हद तक बचाव मिली है, एंड एट द सेम टाइम द एफिकेसी रेट इज सो हाई दैट इट कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर द इमरजेंसी पर्पसेस। नाउ इंडियन नेवी टू ज्वाइन IAF इन द जेट शॉपिंग, बेसिकली अगर बात करें इस तरह की टॉपिक की, तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी और जो आपके डिफेंस के सेक्टर से रिलेटेड जो टॉपिक है वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द नेवी दे आर लुकिंग टू कंबाइन टू बाय द मल्टी रोल कैरियर, जो फाइटर जेट्स होंगे वो एयरफोर्स के साथ जो नेवी है वो मिल करके इसकी करेगी, जिसमें नेवी एयरफोर्स को 114 फाइटर्स लेने हैं और नेवी को भी कुछ अपने परचेज करने। तो ये एक ज्वाइंट होगी कोलैबोरेशन जहाँ पे मल्टी कैरियर को बाय किया जाएगा। Now this idea follow the decision to cut down the number of jets to procure by the DRDO, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं DRDO के बाद एक प्रपोजल है जहाँ पे इंडिजिनस डेवलपमेंट की तरफ भी बात की गई है। एट प्रेजेंट अगर देखें तो जो MiG-29K है दैट ऑपरेट्स फ्रॉम INS विक्रमादित्य, और ये ऑपरेट करेगी फ्रॉम द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको IAC भी कहते हैं। नाउ नेवी फाइटर प्रोक्योरमेंट की अगर बात करें तो जो न्यू डेवलपमेंट है दैट हैज़ बिन ट्विन इंजन, जहाँ पे कैरियर बेस्ड डेक फाइटर होगी जिसको TBDRF भी कहते हैं। दिस इज एंड विच इज डेवलप्ड बाय द DRDO, और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, उन्होंने इसको ऑफर किया कि ठीक है विल बी जॉइंटिंग एंड इंडिजिनस डेवलपिंग इट, एंड सून इंडिया वुड हैव इंडिजिनस डेक बेस्ड फाइटर फॉर द नेवी। तो जो पुराने बहुत सारे जो बाहर से आने वाले थे उसके नंबर को रिड्यूस कर दिए गए हैं, एंड ओनली 45 रशियन MiG-29 हैज़ बिन गिवन परमिशन to go with the aircraft operations with both of the carriers, right? Now coming to the Petroleum Board new unified tariff structure, this news has been reported in the Indian Express and this is important for your general studies paper 3, जहाँ पे infrastructure या फिर आपके renewable energy की जो topics है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा important हो सकते हैं। Now the Petroleum and Natural Gas Regulatory Body, जिसको PNGRB कहते हैं, you can go to the official site of this organization, और इस बोर्ड के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो they have notified कि जो न्यू टेरिफ स्ट्रक्चर है for 14 गैस पाइपलाइन और जो न्यू डायरेक्टिव्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। द न्यू टेरिफ एम्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ नेचुरल गैस है, जो नेचुरल गैस की कॉस्ट हैं उसको कम करने के लिए, और फर्दर जो रिसोर्स होगी नेचुरल गैस की या जो LNG की होगी टर्मिनल्स को फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट इन द कंट्री। व्हाट इज देयर इन द चेंजेस, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो बोर्ड है उन्होंने कहा है कि जो यूनिफाइड टेरिफ होगी स्ट्रक्चर्स की तो बायर को मदद करेगी। अगर कोई भी बायर अगर एक फिक्स टेरिफ में अपने ट्रांसपोर्ट करता है, गैस पाइपलाइन के थ्रू परचेज करता है विद इन 300 किलोमीटर्स, अगर एक लाइन में फिक्स्ड लाइन में, तो उसको एक फिक्स टेरिफ पे करना होगा। और अगर वो 300 किलोमीटर से बियॉन्ड जाता है और सिंगल पाइपलाइन की ही चीज़ों को यूज़ करता है,
so there would be have a fixed amount, fixed tariff that has to be paid. इससे पहले क्या थी, टैरिफ फ्लेक्सिबल थी, जिस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता था. सो बिफोर दिस, अब इसके जो डिसीजन लिए गए हैं, इसके बाद जो मल्टी पाइपलाइन है गेल के, खास करके गेल की मैं बात कर रहा हूँ, दैट वुड बी हैविंग बेनिफिट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दिस चेंजेस. बहुत ऐसे जो गेल के पाइपलाइन को यूज़ कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद होगी. And this would be significantly cheaper to buy further away from the resources of the gases even in the earlier charge, right? तो जो pipeline है that would be used for the distant sources and the source of the gases. तो जब multiple gases के pipeline होती थी और distance आगे पीछे होती थी तो accordingly 300 किलोमीटर्स के ऊपर चार्जेस अलग लगते थे. बट अब जो बोर्ड ने क्या डिसाइड किया है कि there would be a flat charges would be applicable for the single pipeline networks. नाउ रैशनल ऑफ द डिसीजन की अगर बात करें तो जो एक्सपर्ट कमिटी है उन्होंने नोट किया था कि दिस हाईलाइट द गवर्नमेंट एम्फेसिस ऑन बूस्टिंग द कंजप्शन ऑफ द नेचुरल गैसेस इन द कंट्री, कि किस तरह से जो नेचुरल गैस की कैपेसिटी उसको बढ़ाया जाए, उसके तरफ दिस इज द डिसीजन हैज़ बीन टेकन. और गवर्नमेंट ऑल्सो इज एमिंग टू इंश्योर द कंजप्शन ऑफ द नेचुरल गैसेस दैट अकाउंट फॉर 6.2% ऑफ इंडिया. जो एनर्जी बास्केट है हमारी दैट इज ऑलमोस्ट 50% तक करनी है इसको बाय 2030. एट प्रेजेंट वी आर ओनली at 6.2%. Now, how does this impact the gas transmission companies? अगर changes की बात करें, so the changes in the traffic will incentivize the great investment. Affordable होगी, जहाँ पे west coast of the country में सबसे ज़्यादा जिसका benefit दिखेगा. और जो gas transporters हैं that would be given a reasonable rate, so then they could have normative level. और जो capital employed होगी वो भी बहुत operational cost पे होगी pipeline पे, single pipeline. और इसमें जो मैंने आपको शुरुआत में बताया 300 किलोमीटर्स के लिए अलग होगी और 300 किलोमीटर से ऊपर के लिए अलग प्राइजेस डिसाइड होंगे फ्लैट बेसिस पे. नाउ द फर्टिलाइजेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैव पॉइंटेड आउट कि ये जो नेचुरल गैसेस की फर्टिलाइजेशन है दैट शुड बी, अगर मैं एक लाइन की बात करूँ तो दिस इज हजारिया विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है उसके अपने इम्पैक्ट हो गए, जहाँ पे ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपीस तक की सेविंग हो सकेगी. दिस वुड प्रोवाइड अ मेजॉरिटी ऑफ यूरिया आउटपुट इन दिस कंट्री रीजन, राइट. सो दे वुड हैव अगेन देयर इम्पैक्ट. और अल्टीमेटली जिस तरह से ये टैरिफ्स चेंज किए गए हैं उससे इंसेंटिवाइजेशन को बहुत हद तक प्रमोशन मिलेगी. नाउ कमिंग टू द आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस, खास करके जो सैटरडे के सवाल थे. So for the first question, the correct option here is C. That statement 1 and 2 are correct. That the Ramgoolam Magsaysay Award is the highest honor, and it is awarded annually to the individual or organization from Asia, and for their illustrative and philanthropic services. So the source of reference here is PIB. Now coming to the second question, that statement 2, these are correct. That Pamsa is the second major type of architecture form in the temple. And Pamsa is tend to be the broader and shorter in the Latina ones. Statement 2 जो है वो correct है. Pamsa roof are not curved inward and instead they are slope in the straight line, right? So the correct answer here would be B. This would be not C. This would be B, right? So this I have taken from the introduction of Indian art, class 11th. Now coming to the today's MCQs question of the day. The first question is from economy. Consider the following statement with regards to GDP deflator. The GDP price deflator measures the difference between the real GDP and the nominal GDP. First statement. The second is nominal GDP include inflation while the real GDP does not include the inflations. So these are two statements with regards to the GDP deflator. You have to choose the correct option A, B, C or D. Whatever you feel is the correct answer. Just let us know in the comment section down below. Now coming to the second question from polity. Consider the following statement with regards to the convention related to the appointment of office of governor. He should not belong to the state where he is appointed. Second, while appointing to the governor, the president is not required to consult the chief minister of the state concerned. So what you have to do, you have to just choose the correct option. If you have read the power and the convention of the appointment of the office of the governor, it would be very easy for you to answer this question. So do participate, write your answer in the comment section. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.